Good afternoon to everyone. Welcome to my channel Educate India. For the last lecture, lecture 9, we are discussing conservation of mechanical energy. There is some important note for a conservation of mechanical energy. The mechanical energy of a body remains constant for a conservative force or conserved with respect to both position and time. That point is say that if a particle is here with distance x1 and time t1, and this particle moves with some velocity v in direction to right, and at a time t2 the distance is x2. when we calculate when we calculate the sum of their kinetic and potential energy at a point x1 and x2, the kinetic energy kx1 equals to half mv1 square, and potential energy u is defined like work done minus of work done equals to force 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 dot dr minus में the sum of it's at a point x1 is constant and equals to the sum at point x2. तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अगर हम देखें कि एक बॉडी मूव कर रही है किसी एक पॉइंट पे, उसकी मैकेनिकल एनर्जी देखें, और किसी दूसरे पॉइंट पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी देखें किसी भी टाइम पर t1 और t2 पर, तो उस दोनों टाइम्स पर उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी और कंजर्व्ड रहेगी. तो ये मैकेनिकल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू बोथ पोटेंशियल एंड बोथ पोजिशन एंड टाइम. दैट्स अ पॉइंट. नाउ we are, if suppose a non-conservative force acts on a particle, conservative force acts on a particle, so the mechanical energy does not remain constant or conserved, because of the fact the mechanical energy is not remains conserved due to the fact that the work done in displacing the particle from point A to point B is not constant. Suppose there point A and this point B, we taking a path, its path dependent. अगर we taking this path and we taking this path, for a conservative non-conservative force, we taking this path and taking for this path d1 p1 and d2 p2 to moving A to B, and the work done is, so work done p1 not equals to work done p2. That's why the work done for a closed path p1 plus p2 is not equals to 0, or we can say work done for a closed path is not equals to 0, as where we see for conservative force the work done for a closed path is 0.
when we move here say A to B and B to A, there is a round closed path. The work done becomes 0 for conservative force. But if we talk about a non-conservative force, the mechanical energy remains does not conserved due to the fact the work done work done is not conserved. So there may be some other energy. So there may be some other other energy are are created create 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 like sound energy heat energy heat energy नाउ डिस्कसिंग दैट तो अगर वर्क डन जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा तो उसमें अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स और हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो जो टोटल होगा फॉर वी नो फॉर ए वर्क एनर्जी थ्योरम ये टोटल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर कंजर्वेटिव फोर्स उस पर इस्तेमाल हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, तो जो हमने पढ़ा था लास्ट दैट वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट work energy theorem is valid for also non-conservative force, but it defined like this: the summation of conservative force work done and summation of non-conservative force work done is equals to that change in kinetic energy in kinematics. So force work done defined like change in potential energy with minus sign, and plus work done non-conservative force, there we take n equals to k negative, and Wn is now defined as change in kinetic energy plus change in potential energy, and it's called now change in energy. Here we Wc or Wn respectively the work done of conservative and non-conservative force, and k kinetic energy is lose k their kinetic energy del k is the loss of kinetic energy of a particle. एंड सपोज़ अगर यहाँ पे हम वर्क हो रहा है तो वो हम सपोज़ करें कि वो हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो उसको हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं. देन वी रिप्लेस दैट फॉर द लास्ट दिस इक्वल्स टू ई, तो हम इसको रिप्लेस करके डेल ई इक्वल्स टू माइनस क्यू लिख सकते हैं. इस माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ द energy comes outside or release. So or there we change in energy plus q equals to 0. So it is also defined as a energy conservation of a particle. So it is energy conservation of particle. Energy conservation of particle is 0. therefore total energy is conserved. तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होगी समेशन ऑफ अपनी मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी एंड द हीट एनर्जी इज़ 0. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम
momentum. It's an important topic. So first we discuss about motion. Motion हमें पता है in class 12th there are different type of motion. So linear motion, rotating motion, linear motion and rotating motion. यहाँ पे लीनियर मोशन, इसमें भी दो टाइप हैं, ए पार्टिकल और ए सिस्टम. इसमें भी दो टाइप हैं, अबाउट ए एक्सिस, अबाउट इट्स ओन center of axis. So we are talking about only linear momentum. So linear momentum is discussed in part first in linear motion. So linear motion में हम पढ़ते हैं linear momentum. तो इसमें linear momentum होगा, इसमें होगा एंगुलर मोमेंटम होगा. तो एंगुलर मोमेंटम होगा, यहाँ पे लीनियर एसिलेशन होगा, यहाँ पे एंगुलर एसिलेशन होगा, एसिलेशन होगा. यहाँ पे फोर्स होगा, यहाँ टॉर्क होगा जिसको इससे डिनोट करते हैं, फोर्स को F. वेलोसिटी लीनियर होगी, लीनियर वेलोसिटी यहाँ हमें मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी. ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, अभी इसको डीप में पढ़ेंगे. एंगुलर वेलोसिटी इसको किससे दिखाते हैं, V से. यहाँ पे इसको ओमेगा से दिखाएंगे. तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. अब हमें पढ़ना है मोमेंटम. तो मोमेंटम है क्या एक्चुअल में, ये वैसे कोई बताता नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं मोमेंटम क्या है, मतलब एक्चुअल है क्या मोमेंटम. तो मोमेंटम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ज़्यादातर हम यही लिखते हैं, P इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम को P इक्वल्स टू mv लिख देंगे, बस ये हो गया मोमेंटम. नो, एक्चुअल में मोमेंटम है क्या. अगर हम बात करें किसी मोशन की बात करें, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका मोमेंटम जो है वो बताता क्या है. तो उसका मोमेंटम क्या बताएगा. अगर ये पार्टिकल यहाँ पे बॉल है जो सरफेस पे मूव कर रही है वेलोसिटी v से, तो वो उसका मोमेंटम होगा mv. तो एक्चुअल में वो mv है क्या, वो हैं, यही तो पॉइंट है, वो है क्या. हमने पढ़ तो लिया मोमेंटम इक्वल्स टू mv, बट हमें पता नहीं कि एक्चुअल है क्या ये mv और है क्या मोमेंटम. तो मोमेंटम को हम डिफाइन करें तो मोमेंटम is defined as the effect of motion. सपोज करो कि ये एक शीशे की शीट है, ये दो शीट्स हैं, ग्लास शीट हैं, और इसके ऊपर हमारे पास एक मास है m, और यहाँ पे बिग मास है m2 कैपिटल M, और हमने ऊपर से इसको ड्रॉप करा, सपोज करो विद सेम हाइट, फ्री फॉल कर दिया विद सेम हाइट.
तो ये इस पे जाके गिरेगा। अगर इसका मास कम होगा, अब हमने सेम हाइट से छोड़ा है तो इसकी वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि एक्सीलेशन सेम है। तो किसी पॉइंट पे एक्सीलेशन अगर 9.8 है तो पर सेकंड, अगर ये हाइट हमारे पास कुछ दे रखी है तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर हाइट अगर कुछ विद फॉर्मूला हमने न्यूटन्स में पढ़ा है कि v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये पढ़ा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और यहाँ पे टू यहाँ पे g लग रही है तो जी एस v², तो v² इक्वल्स टू अंडर रूट 2g एस वेयर द हाइट, तो हम यहाँ पे h लेट कर लें। तो हमें पता है किसी भी पॉइंट पर जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, किसी हाइट से अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे s होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा हाइट है यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में कहीं मास आया नहीं, तो यहाँ पे वेलोसिटी पता है जो कि हमारी v होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें, अगर ये हमने फ्रीली फॉल करा है और ये इस पॉइंट पे आके गिरता है, सपोज करो यहाँ गिरा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमें पता है विद द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स इक्वेशंस, हमें इसकी वेलोसिटी पता है। सेम हाइट से छोड़े हम, सेम हाइट से, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। चलो देखते हैं। तो आपने, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके ड्रॉप करें, सपोज करो ये ले लिया हमने, इसको ऐसे छोड़े हैं और ये मास हल्का स्मॉल मास है, तो ये जो ग्लास है ये नहीं टूटेगा। अगर सपोज करो यही अगर हमारे पास मासिव है, ये हमारे पास सपोज करो पेन है, ये मासिव वेट है और हमने इसको छोड़ा तो ये जो ग्लास है वो टूट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये दोनों के पास वेलोसिटी सेम है, ना, वेलोसिटी तो सेम है, मास का डिफरेंस है। वेलोसिटी सेम थी, मास डिफरेंस था। तो क्या पता चला इससे? अगर उसकी मोमेंटम, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम थी तो यहाँ मोमेंटम ज़्यादा था, जिसके पास वेलोसिटी तो दोनों की सेम रहेगी कि इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा है। तो मोमेंटम हमें क्या बताता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज ए इफेक्ट ऑफ मोशन। मोशन का क्या इफेक्ट है? अब यहाँ इफेक्ट ऑफ मोशन क्या था? इफेक्ट ऑफ मोशन है क्या एक्चुअल में? क्या इफेक्ट हुआ मोशन का? अब ये यहाँ आके गिरा तो ये टूट गया, शीशा टूट गया, वो यहाँ पे ग्लास था वो टूट गया, और यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल मास था वहाँ पे ग्लास नहीं टूटा। समझ रहे हो? यहाँ पे टूट गया और यहाँ नहीं टूटा, बल्कि हमने सेम हाइट से छोड़ा और वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? मास का। तो ये मोमेंटम, अगर मास प्रोडक्ट v है, मास प्रोडक्ट v, p के इक्वल होता है मोमेंटम। तो यहाँ मोमेंटम चेंज था, तो यहाँ मोमेंटम ज़्यादा था, वहाँ पे उसका मोशन का इफेक्ट ज़्यादा दिखा। जहाँ मोमेंटम कम था वहाँ मोशन का इफेक्ट कम दिखा। ठीक है, चलो ये गुड पॉइंट हो गया कि मोमेंटम इफेक्ट ऑफ मोशन दिखाता है, मोशन का क्या इफेक्ट है। और अब मोमेंटम हमें पता चल गया, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम पता चल गया है, तो फोर्स हम बता सकते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा। जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा होगा वहाँ क्या ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या ज़्यादा फोर्स देखना मिला। तो फोर्स का हमें न्यूटन्स ने क्या दिया है? फोर्स इक्वल्स टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है। सिंपल। मोमेंटम हमें पता चल गया, एक्चुअल में इफेक्ट ऑफ मोशन है। मोशन का इफेक्ट क्या है? अगर हम बात करें किसी अगर इसी केस को हम दूसरे केस में चेंज करें, हमने ऐसे रख ली,
सपोज करो ये हमने शीट ऐसे रख ली अब की बार, और यहाँ पे हमने सेम मास की दो बॉलें ले ली, या फिर एक मेटल की बॉल ले ली, मेटलिक बॉल ले ली, और इसको इस वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटी से छोड़ा। यहाँ पे v1 वेलोसिटी, यहाँ पे v2 वेलोसिटी से मूव करा, मतलब फेंका इस ग्लास की शीट पर। तो ये वाली टूट जाएगी, ये वाली टूट जाएगी, बताओ। यहाँ पे वेलोसिटी समहाउ कुछ हमने, मास दोनों का सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। मास दोनों का सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक। तो यहाँ जो ग्लास होगा वो नहीं टूटेगा क्योंकि हमने वेलोसिटी उसकी कम रखी है, और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये ग्लास टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इफेक्ट ऑफ मोशन शो हो रहा है ना, इफेक्ट ऑफ मोशन दिखा रहा है ये भी, इफेक्ट ऑफ मोशन का ही तो इफेक्ट हो रहा है ये। मोशन का क्या इफेक्ट हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज थी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी, मास दोनों का सेम था, और हमने थ्रो करा किसी भी ग्लास शीट पे, और वो ग्लास शीट टूट गई, बल्कि जहाँ पे वेलोसिटी कम थी वहाँ नहीं टूटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या दिखा रही है, वेलोसिटी यहाँ पे इफेक्ट दिखा रही है, अपना इफेक्ट ही तो शो कर रही है। तो हम उसको मोमेंटम पी से दिखाते हैं, इफेक्ट ऑफ मोशन का क्या इफेक्ट है, P इक्वल्स टू mv, डेट क्वाइट सिंपल। नाउ डिस्कसिंग अबाउट mv। अगर यहाँ हमने निकाला है तो फोर्स को हमने डिफाइन कर लिया इसके थ्रू, dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हेयर, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब इसको अगर हम लीनियर मोमेंटम में चेंज करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे dmv। अगर मास भी वेरिएबल है, मास भी अगर चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो वो क्या बताता है, तो फर्स्ट सेम मास सेम dv अपॉन dt प्लस सेकेंड सेम, तो यहाँ पे मास प्लस सेकेंड सेम वेलोसिटी सेम, तो dm अपॉन dt और ये डॉट वेलोसिटी। ये बनेगा। यहाँ पे dm अपॉन dt क्या है, चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज इन मास। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका हम रॉकेट लेंगे। अगर रॉकेट आपने देखा होगा जब हम स्पेस में लॉन्च करते हैं तो उसका जो मास है वो कम होता जाता है, मास उसमें फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है, तो उसका फ्यूल टैंक में से फ्यूल ख़त्म होने की वजह से तो उसका मास जो है कम होने लगता है। तो वहाँ पे हमारे न्यूटन्स के जो लॉ हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, वो अप्लाई नहीं होता। तो वहाँ पे हम कौन सा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फोर्स का, ठीक है। तो ये दो केसेस हमारे पास बन गए कि पहला केस, अगर हम फ्रीली फॉल करें किसी भी बॉडी को फ्रॉम सम हाइट, तो एट ए पॉइंट ऑफ सरफेस एट विच इट टच एंड द इफेक्ट शो सम इफेक्ट्स, दो इफेक्ट दिखाएगा, या तो टूटेगा या ग्लास टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी दोनों की सेम है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ मास जो है वो डिफरेंस है, मास का डिफरेंस है। तो यहाँ मास डिफरेंस है, तो मास के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन दो अलग तरीके से हो रहा है, इफेक्ट ऑफ मोशन दो अलग तरीके से होता है। यहाँ पे P कैपिटल M V आएगा और यहाँ पे स्मॉल m v, यहाँ वेलोसिटी सेम है, और ये हमें पता है, हमें फॉर्मूला है, ये है लास्ट इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। एंड अगर इसी केस को हम थोड़ा सा ऐसे रख के करें तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी मास सेम रहे और वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मोशन अलग अलग डिफरेंट टाइप से मिलेगा। तो एक्चुअल यही है, अब इसको हम पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे अगर, देखते हैं अब। कंजर्वेशन ऑफ ए, अब अगला टॉपिक हमारे पास आएगा कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m विद ए वेलोसिटी v। तो पार्टिकल अगर मास m है, उसकी जो वेलोसिटी v है, तो उसको मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? p इक्वल्स टू एम वी, वेयर p इज ऑल्सो ए वेक्टर। ये वेक्टर है, इसकी डायमेंशन हमें एम एल और m मास वेलोसिटी की एल टी इनवर्स ये दिखा सकते हैं। तो हाँ, एक पॉइंट और, इसकी जो वैल्यू है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। अगर रोटेटिंग फ्रेम हुआ या फिर एक्सीलरेटेड फ्रेम हुआ तो वहाँ पे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर रोटेटिंग फ्रेम है तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो रोटेटिंग फ्रेम में हमें पता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है रोटेटिंग फ्रेम में, दैट वी डैश फॉर और ये फॉर रोटेटिंग फ्रेम